sir? Yes. Good afternoon, sirs. Okay, please be seated. Thank you, sir. Mr. Garg, in which language you are more comfortable, Hindi or English? Sir, I am comfortable in both, in Hindi as well as English. Okay. So can me something about yourself? Yes, sir. Good afternoon, sirs. Sir, my name is Shivam Garg. I belong to Jewar, Uttar Pradesh. I completed my class 10th from Pragyan Public School with 9.2 CGPA. Thereafter completed my class 12th from PLNM Inter College with 86.2 aggregate. Sir, I completed my graduation from JSS College, which belongs to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University with 83.3 aggregate. And sir, my father is a shopkeeper, and sir, my mother is homemaker. Okay. What is your area of interest? Sir, my area of interest are sir playing badminton, and sir listening Hindi music songs, and sir reading books. Okay, so you love music. Yes, sir. Okay. किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं आप? Sir, music. Sir, if basically I listen to the sir non-film musics. Sir, like sir, which belongs to sir like devotionals and sir culturals. ओके, उस्ताद फतेह अली खान का नाम सुना है आपने? Yes, sir. घराना क्या है उनका? किस घराने को बिलोंग करते हैं? म्यूजिक के अंदर अलग अलग घराने होते हैं ना? Yes, sir. Yes. किस घराने को बिलोंग करते हैं? Sorry, sir. ओके. डू यू रीड न्यूज़पेपर? Yes, sir. अच्छा, क्या बता सकते हैं कि अभी कुछ टाइम के अंदर इंडियन करेंसी बहुत डीवैल्यूड हुई है, डेप्रिसिएट हुई है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? Sir, I'm not very sure with this, but if you will allow me, then I will make a guess. ओके, टेल मी. Sir, depreciation in our currency may be due to sir major factor is sir COVID reason. Another one sir is that sir currently we are facing many issues that are consist of sir like unemployment is major reason within this all, and sir economic condition is not so well of our nation. ओके. अच्छा, एक बात बताइए आप कि अभी यंगस्टर्स हैं, सबके सब आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं. Yes, sir. बट यू आर प्रेफरिंग द पब्लिक सेक्टर ओवर प्राइवेट सेक्टर. Yes. एनी रीज़न बिहाइंड दैट? Sir, basically, for specifically IOCL, sir, as IOCL is a prestigious organization which transport approximately 55% of petroleum and natural gas to our nation, and sir, with this, this is exploring in various fields also by considering the environmental conditions. Sir, this would be a really great opportunity for me to work with this organization. Okay, Indian PSU has been classified into the three categories: Yes. Maharatna, Navratna, and Mini Ratna. Yes, sir. So, what is the logic behind that? Sir, basically classification is on the basis of turnover, and sir it's profit making ability, or sir annual profit making. Sir, in case of Maharatna, sir Maharatna is classified as for which organization which has annual profit of more than 15,000 crore. Okay, so how many Maharatna we have? Sorry, sir, but Okay, sir. शिवम गर्ग, yes, sir. थोड़ी सी टेक्निकल बात कर सकते हैं? Yes, sir. आप ही बता दो आपके कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो? Sir, I am comfortable in fluid mechanics and sir heat transfer and sir basically thermal engineering. थर्मल वाला पार्ट. Yes, sir. Sir, along with this, I am also comfortable in strength of material. ओके. And sir, a little bit in sir theory of machine also. ओके. तो मेरे वाले सब्जेक्ट्स आपने सबसे लास्ट में रखे हुए हैं. एनीवे, ठीक है, हम बहुत बेसिक्स पे ही बात करेंगे. ऑल्दो यू आर फ्रॉम जेएसएस, है ना, बहुत अच्छी रैंक्स के थ्रू आप, है ना, यहाँ तक पहुंचो, तो कुछ तो पता ही होगा अच्छे से. कुछ बेसिक बात करते हैं. मतलब फॉर अ मोमेंट कंसिडर कर लीजिए कि मैं आपको कुछ मशीनरी डिजाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, Yes, sir. एंड
मोटर से किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करना है आपको, है ना, और एक शाफ्ट यूज करनी है, तो शाफ्ट एंड साइज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, है ना। तो आपके पास चॉइस है कि या तो आप हॉलो शाफ्ट ले लो या तो आप सॉलिड शाफ्ट ले लो। वेट दोनों का सेम रखना है ना। वेट दोनों का सेम रखना है। साइज डायमीटर कम है ज्यादा है डजंट मैटर। आप किसको प्रेफर करना चाहोगे? Sir, in this given condition, I will prefer for the sir hollow shaft. हॉलो शाफ्ट। Yes, sir. Sir, if weight is constraint, then I will definitely go with the hollow shaft. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ी सी बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मशीन पे, है ना। या आप ऐसा एक काम करो, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी है ना। Yes, sir. Always. कोई 2-3 साइंटिस्ट के नाम आप बता सकते हो जो दिखाई पड़े हो? Yes, sir. Sir, in strength of material, sir, major contribution belongs to sir Euler's scientist as Euler's, and sir, like sir Rankine also. ओके, Along with this, sir, we कोई 2-4 और नाम जो सुन रखे हो? sir, I'm not sure with one name, sir, but I would like to mention Hooke's. डेफिनेटली यस, Yes, sir. है ना। What is Hooke's law? Sir, Hooke's law represents for a condition where sir stress is direct proportional to strain. What is Rankine theory of failure? Sir, Rankine theory of failure belongs to crippling condition. थ्योरीज ऑफ फेलियर। Sorry, sir, for this. Sir, Rankine theory of failure belongs to sir condition of maximum principal stress, where it states that if a material has tensile strength greater than yield stress, then material will begin to What fail. is Euler's theory of column? Sir, Euler's theory of column belongs to sir crippling condition, sir, in which we consider for a crippling load for different kind of conditions like double fixed or hinged and sir many others. ओके, कुलदीप सर। आपका जो कॉलेज प्रोजेक्ट था उसमें आपने क्या किया और आपका रोल क्या था? Yes, sir. Sir, I completed my college project on fabrication and reprocessing of green composite material. Sir, in that we prepared 3 samples. Sir, first was with sir sugarcane bagasse along with the calcium carbonate, where I used starch as binder and Clorex as bleaching agent. Sir, with this composition we prepared a bowl, and sir, for the second sample we took sodium bicarbonate along with the sir coconut fiber. Sir, again we took starch as binder. Sir, with this we prepared a thin sheet of approximately 2 to 3 mm. Sir, our third sample was sir, we took banana fiber along with its residue with sir calcium carbonate. Sir, we prepared a sheet of approximately 11 to 12 mm. सो आउट ऑफ दिस आपने किस एरिया में काम किया था? Sir, basically sir, my work on this project sir was of fabrication. Sir, I prepared sheets, and sir, for this sir, due to COVID reason we do not have any strength testing machine. Sir, I prepared a machine so that we can manually test its strength. ओके, सो लाइक जब हम ग्रेजुएशन करते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स का क्या यूज़ हुआ था? सारे के सारे सब्जेक्ट्स की जो लर्निंग थी वो क्या यूज़ था उसका आपके प्रोजेक्ट में? Yes, sir. Sir, as per theory of machine, or sir, we can conclude like sir, for strength testing machine, sir, I prepared a machine so that sir, due to sir some constraints, like sir, if we are preparing bowl, then sir, we cannot go for various kinds of machine. We have to prepare a machine that has capability of low load. Sir, with this sir, I prepared a screw machine. Sir, it has a fixed load. Sir, after some turns it will provide a pre-tension on a workpiece. Sir, in this I calculated the load capacity of material. ओके, एंड आपने इंटर्नशिप कहाँ से कंप्लीट की? Sir, I completed my internship from Indo Autotech Faridabad. ओके, सो क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी? Sir, this company works for outsourcing for various materials like mount door striker and retaining plates and also brackets etc. ओके, सो इसकी जो ये कंपनी इसकी कहाँ डीलिंग होती है? और Yes, sir. Sir, this company deals with IMA, Indian Military Association, sir, Indian Railways, and sir, JCB.
ओके सो जब आपने इंटर्नशिप करी तो आपने एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस थोड़ा गेन किया होगा Yes, sir. तो आप अपनी कॉलेज स्टडी और जो इंटर्नशिप है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कितना आपने यूटिलाइज किया Yes, sir. Sir, it was really very helpful. In my internship, sir, I get to some knowledge about sir like laser cutting machine and sir pipe bending and sheet bending and sir basic uses of jigs and fixture and along with sir some various kinds of weldings. ये जैसे आप थर्मल वाले पार्ट को भी बोले और फ्लूइड मैकेनिक्स मैं कुछ इसको आईओएसएल से लिंक करूंगा। Yes, sir. फ्लैश पॉइंट पहले तो क्या होता है? Sir, flash point is the minimum temperature at which sir liquid fuel begin to vaporize. ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एसक्यू एंड एमएस, एमएस क्या होता है जानते हो? Yes, sir. Sir, MS basically a term that is given to petrol. ओके, तो एसक्यू और एमएस में किसका फ्लैश पॉइंट कम है? Sir, among एसक्यू कैरोसिन। SQ and MS, sir, petrol has least flash point temperature. तो एक अपना एप्टीट्यूड लगा करता है ना, जैसे पाइपलाइन से प्रोडक्ट आ रहा है Yes, sir. उसमें एक बैच एसक्यू का है, Yes, sir. ठीक है, उसके पीछे एमएस का है पेट्रोल का। Yes, sir. तो कुछ पार्ट होगा जो आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है, जो मिक्स नहीं हुआ एसक्यू वाला एसक्यू के टैंक में चला गया Yes. और एमएस वाला एमएस के टैंक में चला गया। जो मिक्स पार्ट है उसको आप किसके टैंक में जाना प्रेफर करोगे, एसक्यू के कि एमएस के? Sir, for sir, I think this will depend upon the sir what factor we are considering. Sir, for this, sir, it should be stored under sir MS. I will. एमएस Sir, रीजन? yes. Sir, because our MS has lowest flash point temperature, its flash point temperature is approximately -33 degrees Celsius. So, sir, तो एमएस में डालेंगे तो एसक्यू में डालने से क्या नुकसान होगा? फ्लैश पॉइंट कम हो जाएगा। yes, वेरी गुड। और आपको एक जैसे आपका हम लोग सेल्स ऑफ एज ए सेल्स ऑफिसर आपका Yes. पोस्टिंग हो रहा है बॉटलिंग प्लांट में, मतलब एलपीजी से रिलेटेड। yes, sir. आईओसीएल का जो गैस सिलेंडर आता है उसका क्या नाम है? Sir, IOCL's sir gas cylinder's name is sir I think it's belong to Indian Gas. इंडियन, हाँ। और एचपीसीएल का? Sorry, sir. एचपी गैस। So- तो आपका एक जगह पोस्टिंग है, आप सेल्स ऑफिसर और बॉटलिंग इसके गैस के, वहाँ पर एचपी गैस सारे घरों में लगा हुआ है, Yes, sir. ठीक है। अब आपको वहाँ इंडियन गैस मतलब कस्टमर को वो करना है कि इंडियन गैस को कस्टमर प्रेफर करें, Yes, sir. तो आप क्या चीज़ करोगे कि मतलब वो एचपी गैस का वो सब्सक्रिप्शन छोड़ के इंडियन गैस की तरफ स्विच करें? Yes, sir. Sir, with this problem, firstly, I would like to organize a program, awareness program. So, sir, in this program, sir, we will try to provide our basic details that how our Indian gas is beneficial with comparison to sir HP gas. Sir, बोथ आर पीएसयू, दोनों में एक ही एलपीजी है, Yes, क्वालिटी कंट्रोल भी सेम है। yes, sir. Sir, we will consider that HPCL like sir our sorry sir. कोई बात नहीं। ये क्या पहन लगाया आपने, धागा क्या है वो? Sir, this is sir Rakhi. नहीं, राखी के अलावा Uh, लाल लाल Sir, ये मैं भी बांधा हूँ। yes sir. Sir, this is Kalava. Kalava, sir. तो ये किस लिए लगवाया है? Sir, basically this is sir. Can I speak in Hindi, sir? हाँ, यस यस। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, ये अगर हम जैसा कि मैं एक हिंदू सभ्यता से हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो सर इसकी एक मंदिर में हम जब जाते हैं तो सर इसमें प्रेफर किया जाता है कि धागा। जब भी आप मंदिर जाते हो तो बंधवाते हो? नहीं सर, सर इसमें अभी जैसे अभी हमने एक धागा कलावा बांधा हुआ है, तो सर इसके बेनिफिट्स काफ़ी और भी हैं, लेकिन सर ये एक ही बांधा है। इंटरव्यू के लिए बंधवाया है कि नहीं? नो सर। मतलब ये चीज़ को सिग्निफाई करता है, यस सर। किस चीज़ को सिग्निफाई करता है ये? मतलब आपने जो चीज बनवाई है इसके पीछे कुछ सीक्रेट कुछ है? आपको भी मालूम होगा या Yes, बस लोग कहते हैं तो मान लिया? सर इट हेल्प्स टू सर आई एम नॉट श्योर विद माय रीज़न, बट सर इट हेल्प्स टू कलाई को सर ये थोड़ा थिकनेस शायद मेंटेन रखता है। अच्छा, आईओसीएल और ओएनजीसी में बेसिक क्या डिफरेंस है? मतलब ओएनजीसी किस फील्ड में है और आईओसीएल किस फील्ड में है? यस सर।
Sir, difference between IOCL and ONGC. Sir, ONGC is upstream organization, while sir IOCL is midstream और downstream organization. अच्छा, आपकी रैंक कितनी है? Sir, my rank is 336. तो ONGC से भी कॉल आ सकता है इंटरव्यू का? Yes, sir. तो अगर आपका दोनों में सिलेक्शन होता है Yes, तो आप किसको प्रीफर करोगे और क्यों? Sir, in this situation, sir, I will prefer for the IOCL because sir IOCL if अगर मैं सर IOCL में सेलेक्ट होता हूँ तो सर ONGC ऑप्शन मैं उसके लिए फर्दर नहीं जाऊँगा, क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं सर ये मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है. Okay, but ONGC is a better company as compared to IOCL as per the ranking of PSU. Yes, sir. Then, Sir, up to my desire, sir, I think IOCL is. तो आप जैसे IOCL में हो, आपको अरब कंट्री से कॉल आ रहा है Yes, sir. डबल ट्रिपल पैकेज में, तो वो भी वैल्यू के अगेंस्ट है, आप जाओगे कि नहीं? Sir, still I will prefer the IOCL. रीजन? Sir, reason, sir, actually my father belongs to some this background. So sir, I think as per as sir also my college senior come to college. So sir, I got influenced with this. Sir, still after that I also worked on IOCL. Sir, by net surfing and other also. Sir, I think IOCL can provide me the spark so as to work hard. आप 15 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो? Yes, sir. Sir, after 15 years, sir, I will find myself at some mid-hierarchical position, working along toward the success of IOCL. जैसे IOCL का प्रमोशनल कैसे होता है आपको पता है? Yes, sir. कैसे? Sir, IOCL provides promotion after 3 to 4 years. 3-4 ईयर में होना फाइनल है कि कुछ परफॉर्मेंस देखा जाता है? Sir, it is actually performance dependent also. तो मान लो आप IOCL में टर्मिनल में या कहीं पोस्टिंग है, आपका कलीग भी है, Yes, sir. 4 साल बाद आपने बहुत मतलब डेडिकेशन 100% डेडिकेशन के साथ काम किया है, Yes, sir. आपको लगता है कि कलीग में कहीं ना कहीं कमी था, Yes, sir. बट उसका प्रमोशन हुआ, आपका नहीं हुआ, Yes, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे? Sir, in this situation, firstly, I will appreciate his work. Thereafter, sir, I will try to learn from his things. Sir, thereafter, I will try to implement these things and build up my skills also. उसमें कोई कमी नहीं है, आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस 100% था, फिर भी आपका प्रमोशन नहीं हुआ? Sir, I think, sir, I will leave this decision on organization. okay, how to deal the work pressure and the stress? Yes, sir. Sir, I think we should, as per as sir my works, sir, I think we should focus on our work. And sir, stress may also arise due to some conditions, but sir, we should be resilient enough and focus on our work. Okay, So I think, sir, Okay. that's enough. that's enough. Thank you, sir. 2 मिनट बाद आ जाना। बैठ कैसा लगा फिर? सर काफ़ी अच्छा था, और सर इससे डेफिनेटली सी बात है सर, बेनिफिट और होगा. शिवम, इससे पहले कि हम लोग बताएं कि क्या सजेशंस हैं या क्या कमियां रहेंगी, आप खुद से बताओ कि कुछ कहीं पर लगा कुछ लैग कर रहा है? सर एक तो सर मुझे लगता है कि कलावा वाला जो एग्ज़ाम्पल है सर, वो काफ़ी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया. और सर इसके अलग सर IOCL में जो एक मुझे ये भी जानना ज़रूरी था कि PSU अभी कौन सी हुई है सर, वो भी मैं इंफॉर्मेशन ज़्यादा फुलफिल नहीं कर पा रहा था. ठीक है. जैसे तो वो कलावा वाले में जैसे मतलब मैं पूछा, जैसे आप मतलब इसके लिए स्पेशली कराया, तो अगर उसके लिए आप मंदिर गए तो बोल सकते हो, मतलब वो अच्छी चीज़ दिखाएगी. जैसे मेरे से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. यस सर. और दूसरा चीज़ एक वो इंडियन गैस और HP वाला जो था, वो क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा आता है, मतलब आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए. और सर देखिए, ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था. कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको रियल में फॉलो करनी चाहिए. एक्चुअली पहले जब आप आ रहे थे, मतलब वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, जज करना आपको स्टार्ट हो जाता है. आपकी लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर. क्योंकि आप आते वक्त भी हाथ ऐसे पीछे करके चल रहे थे और आते वक्त भी हाथ पीछे करके चल रहे थे. एक्चुअली हाथ मैंने हैंड्स बैग
वो प्रेफर करते हैं ना, तो इसलिए किया था। नहीं नहीं, एक हाथ आपका सीधा था, एक हाथ मतलब ये आपका जो बॉडी पोस्चर था ना ये करेक्ट नहीं है, मतलब ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब आप आ रहे थे और जाते वक्त दोनों टाइम पे आपने ऐसा किया, ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को आप अच्छा रखिए। सेकंड बात, अगर मैं ड्रेस के ऊपर बताऊं, जैसे आपके टाई में रिंकल्स लगे हुए हैं, कुछ रीज़न है इसके? मतलब आपका जो टाई पेन जहाँ पर लगाया है ना आपने, वहीं पर रिंकल्स हैं, तो आप इसको अच्छी तरह करके चलिए। शूज़ आपके पॉलिस्टर नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जब मैंने आपको पूछा कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, आपने बताया कोई भी लैंग्वेज, आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में दे रहे हैं, आपको पता है राजभाषा अधिनियम कानून के अकॉर्डिंग ये हिंदी का अपमान है। मतलब राजभाषा अधिनियम कानून ये बोलता है हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। अगर इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका रिप्लाई सिर्फ हिंदी में ही देना है, इंग्लिश में नहीं देना है, अनलेस अनटिल यू आर अ कैंडिडेट जो हिंदी जानते ही जो नहीं जानता, ठीक है। लेकिन आप तो मतलब यूपी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। जनरल क्वेश्चन के अंदर जैसे ये महारत्ना नवरत्ना जो मैंने आपको पूछा था, खाली एक वीक पहले ही एक कंपनी बनी है, मतलब ये तो आपको याद होना चाहिए। जब आप PSUs के अंदर जा रहे हैं और आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है, स्पेशली IOC के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी रैंकिंग क्या है, क्या चल रही है। PSUs के अंदर जो डिफरेंट PSUs हैं, जैसे सर ने पूछा था BPCL, HPCL, इनके बीच में डिफरेंस, आप एक इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि आप IOC में ही क्यों जाना चाहते हैं। वो आपका रिप्लाई मतलब वो जस्टिफाइड नहीं लगा था किसी भी तरह से। जैसे आपने कहा नहीं ONGC नहीं, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ मेरे एथिक्स से, बट ये कोई रिप्लाई नहीं हुआ कि एथिक्स से ये सर इसमें उसमें आप ये बोल सकते हैं ना कि वहाँ जो पोस्टिंग है टफ, मतलब ONGC में लोग क्यों प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा टफ पोस्टिंग होती है कि मुंबई हाई में आप पोस्टेड रहते हो तो 15 डेज़ आपको अंदर रहना पड़ता है, 15 डेज़ आपको बाहर रहना पड़ता है। इसके अलावा पूरे के पूरे एक्सप्लोरेशन एरिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो सबसे टफ पोस्टिंग ही ONGC के अंदर है। मतलब पैसा ज़्यादा मिलता है लेकिन पोस्टिंग बहुत टफ है। तो IOC के अंदर आप बेटर लाइफ लीड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देना था, लेकिन आपका वो रिप्लाई मतलब जस्टिफाइड नहीं लगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था सर, एक्चुअली मैं उसमें एक वर्ड इंटीग्रिटी मतलब बार बार मैं मिस कर रहा था उस चीज़ को। सर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटीग्रिटी मतलब मैं समझता हूँ कि वो नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास में दोनों के ऑफर हैं तो उसमें इंटीग्रिटी की तो बात ही नहीं आई भाई। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं फिर लीव करते हैं तब इंटीग्रिटी की बात आती है। अगर आपके पास में दोनों के ऑफर साथ में ही हैं तो इंटीग्रिटी है ही नहीं ना। तब आपको जस्टिफाई करना है कि आपको IOC को चूज करनी है, क्योंकि आप बेटर को छोड़ रहे हो। ONGC का पैकेज IOC से ज़्यादा है तो क्यों छोड़ रहे हो, क्या कुछ रीज़न तो आप बताओगे ना। नो डाउट आपको बताना IOC है। अगर आप IOC के इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपको IOC बताना है, और ONGC में बैठे तो आपको ONGC बताना है। तो IOC में बैठने का मतलब है आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट गिनाना है और ONGC के थोड़े नेगेटिव पॉइंट गिनाना है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसको तुरंत स्विच भी करना है जब नेक्स्ट ONGC का इंटरव्यू डेफिनेटली आप देने ही जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सेलेक्ट हो गए तो वहाँ जाओगे ही नहीं, बट जब आप वहाँ जाओगे तो फिर आपको फिर से कुछ उनके पॉजिटिव और यहाँ के नेगेटिव ढूंढना है। और इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आप सैलरीज को कंपेयर कर लें कि भाई ONGC IOCL में तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो फिर ठीक है सर, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम बस कोशिश करना चाहते हैं। इसमें अगर हम कंपनी की सैलरी वाला पॉइंट अगर ONGC में बोल दें कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है, क्योंकि वही प्लस पॉइंट है ना वहाँ पर कि आप एक जगह से भाई आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ONGC नंबर 1 PSUs है, मतलब इंडिया का, सैलरी यहाँ से ज़्यादा है, तो आपकी बेटर पोजीशन कहाँ पर होगी, ONGC के अंदर होगी, तो आप वहाँ पर जाओगे, है ना। मैं दो एक बातें बोलना चाहूँगा। ओवरऑल सब कुछ सही था, सर ने बाकी सारी चीज़ें कवर कर ली बेटा। आपने स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा हेजिटेंट लगा, मतलब यू शुड नो योरसेल्फ। आपने जब इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, JSS नोएडा से, बड़ा भी था, है ना, और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, गेट में अच्छी रैंक आई है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह भी निकाला है, तो जस्ट कैरी दैट कॉन्फिडेंस कि भाई हाँ हमें चीज़ें आती हैं, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो थी, अब वो प्रेशर की वजह से थी या इंग्लिश की वजह से थी, आई डोंट नो, बट वो चीज़ थोड़ा सा कर लोगे, बीच में आते आते यू वर क्वाइट कॉन्फिडेंट। और दूसरा एक चीज़ अच्छी भी लगी कि सर ने जब पूछा था कि वो इकोनॉमिक्स के बारे में कि इंडियन करेंसी क्यों नीचे है, आपको आइडिया नहीं है, चलता है, और आपने सीधे सॉरी सर बोल के आगे बढ़ने की बजाय आपने बोला कि सर मालूम नहीं है बट लेट मी गेस, तो दैट वाज अ गुड थिंग। एक आपका आई कांटेक्ट का भी पॉइंट था, मतलब जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको मैक्सिमम आई कांटेक्ट उसी से रखना था, लेकिन आप इधर मेरी तरफ देख रहे हैं या इधर देख रहे हैं,
आई कांटेक्ट को सुधारने की जरूरत है। मतलब जो पूछ रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% टाइम उन्हीं को देखो, बट मैक्सिमम टाइम आपको उसी को देखना है। सर मैं उसमें एक ट्राई कर रहा था कि मतलब सबके साथ इंटरेक्शन, मैं समझ रहा हूँ कि आप वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हेजिटेशन, वो कोशिश दिखा रहा था कि जबरदस्ती की कोशिश कर रहे वो फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स नहीं होने मतलब चाहिए। जो क्वेश्चन Flow पूछा में है होना उनके चाहिए। साथ कांटेक्ट खत्म हो गया ना। यस सर ठीक है, बाकी सारी चीजें बाकी Overall पॉजिटिव था, good. जैसे काफी अच्छा था, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा था। आंसर जो टेक्निकल में आपने टेक्निकल दिए, नॉलेज आपकी वो बहुत अच्छी आपकी है। बहुत अच्छी स्किल्स थे। सारे क्वेश्चंस आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पा रहे थे। ट्राई करिए कि वो सेम चीज जो आपको रेदर देन टेक्निकल एचआर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें भी आप उसी तरीके से आंसर कर पाएं, क्योंकि टेक्निकल में आपका कॉन्फिडेंस दिखता है और वो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल का कॉन्फिडेंस और जो एचआर के क्वेश्चन में थोड़ा लेक होता है ना, वो मेजर हो पाता है। तो आप दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल अपना सेम रखो। कि एचआर के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं आ रहे हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट सर मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का, मे बी गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आप, लेकिन आंसर आप पूरे कॉन्फिडेंस में दीजिए। ओवरऑल बाकी आप मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू मी। कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, जैसे ऐप वो एसक्यू और वो जो प्रोडक्ट वाला का बैच में जाएगा, उसमें आपने अपना एप्टीट्यूड अच्छा लगाया, तो ये सब चीजें एप्टीट्यूड दिखता है। दूसरा बस ये कॉन्फिडेंस रखना, मतलब आईओएसएल कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मतलब कंफर्टेबल रहना, वहाँ आपका कम्युनिकेशन देखा जाएगा, किस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो नहीं देखेंगे। क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आंसर देने में जब आप टाइम लगाओगे, तो मुझे नहीं पता कि आपको आता नहीं है इसलिए रुक रहे हो, या आता है बट इंग्लिश में फ्रेम कर रहे हो। मतलब गवर्नमेंट Communication डिपार्टमेंट के not अंदर स्पेशली है ना, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं Barrier नहीं है है। गवर्नमेंट के अंदर। सो दैट्स ऑल। और एक चीज और, ये जो कलावा वाली बात पूछ ली गई थी, मेरे ख्याल से जब आपकी पूरी बॉडी में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही दिख रही है, आपने हाथ भी अगर मेरे सामने रखा हुआ है तो दिख रहा है, अगर आपने कान में बाली पहन रखी है तो दिख रही है, तो जो भी चीज आप अपने बॉडी में दिखा रहे हो, कर रहे हो ना, तो उस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा एंड यू शुड बी उस रेडी। पे लॉजिक देखो ना कि लॉजिकली क्यों पहनते हैं, ये सर्च करो। बहुत डिफाइन नहीं करना सर, ठीक है, मतलब मान्यताएं हैं, घर में पूजा हुई थी, मम्मी ने कहा था बांध देते, तो मम्मी की खुशी के लिए बांध दिया, दैट्स इट। सर एक पेन भी रख सकते हैं क्या पॉकेट में? हाँ रख सकते हैं, नहीं भी रखे तो ऐसे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है अपना अगर रखने जैसे में। कुछ लिख के दिखाना वहाँ ना हो अवेलेबल, एक पेन हाँ, एक पेन कैरी किया जा सकता है। वो कर लेना। ठीक है, ठीक है। बाकी आप और- ओवरऑल अकॉर्डिंग टू अस लाइक सर काफी टेक्निकल हाँ। डोमेन में तो हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत कॉन्फिडेंस। अगर आप ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा इंटरव्यू, नो डाउट। और You दूसरा are है कि deserving ये मत सोचना हम लोग ये इतने सारे पॉइंट बताए हैं तो इंटरव्यू खराब था। हम लोग को ये पॉइंट इसलिए बताए हैं कि ये चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग भी एक्चुअल में आईएसएल के पैनल में होते तो आज आपको Definitely. डेफिनेटली यू विल सेलेक्टेड, यस। एंड आई होप और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। यस सर। सर पॉइंट्स तो मैं काफ़ी टाइम से कुलदीप सर को ही फॉलो कर रहा हूँ, तो सर पॉइंट्स में मतलब सीखने को मिलता रहता है, मैं देखता रहता हूँ सर। तो आईएसएल की वेबसाइट विजिट करके जाना अच्छे से। थैंक यू शिवम, थैंक यू सर। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। सर कैन आई क्लियर दिस? हाँ, Yeah, sure. This is a small gift from Sir, our this is- side.